زندگی کے اسٹیج پر کبھی کبھی ہمیں وہ کردار ادا کرنے پڑتے ہیں جو ہم نے کبھی چنے ہی نہیں ہوتے، لیکن یہی دراصل وہ موڑ ہوتا ہے جہاں علم ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور حکمت ہمیں گرنے سے بچا لیتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر کہانی کا اختتام جیت نہیں ہوتا، کبھی کبھی محض سیکھ جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ناول زون میں خوش آمدید، بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ بکو کیا کہنا ہے مگر جلدی، سلیمان اس کے پاس بیٹھا بات کو مختصر سا کرنے کو بولا۔ رویان نے بھی منہ کھولا ہی تھا کہ سلمان کے موبائل کی رنگ ٹون نے دونوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ وہاں فارس کا لنک لکھا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بھائی، آپ فون اٹھا لیں، فارس کو کوئی ضروری کام ہوگا، کسی کی ٹانگ وانگ توڑنی ہوگی، اور میرا مطلب ہے کہیں جانا ہوگا تو سن لے بیچارے کی بات۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتا ہوا سلیمان کو تیش دلا رہا تھا۔ سلیمان نے کال اٹھائی۔ میں خود کروں گا کال، بس وہ فارس کو اتنا کہتا موبائل بیڈ پہ اچھالتا رویان کی طرف بڑھا جو کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سلیمان نے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکا۔ رویان کی تو جیسے بولتی ہی بند ہو گئی اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ کیا بکواس کر رہا تھا ابھی؟ میری جاسوسی کرتا ہے؟ اس کا انجام جانتے ہو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آج رات تمہاری ہی ٹانگیں توڑ دوں اور زبان گدی سے کھینچ کے باہر نکال دوں تو کیا کر لو گے؟ بولو۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا رویان کا رنگ اچھا خاصا اڑا چکا تھا۔ بھائی میں تو آپ کو گڈ نائٹ کہنے آیا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا سچی۔ وہ سلیمان کے دونوں بازو ہٹانے کی کوشش تو کر رہا تھا مگر وہ سلیمان کو ہلا بھی نہ پایا۔ اس نے سلیمان کے بازو کے نیچے سے کھسکنے کی کوشش کی مگر سلیمان نے اسے جھٹکا دے کر وارن کیا۔ اس کے چہرے پر سرخی ابھر آئی۔ کھسکنے کی کوشش کی نا تو ہڈیاں یوں چٹکاؤں گا جیسے مونگ پھلیاں توڑتے ہیں۔ رویان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھائی میں ہوں رویان، ہوش میں آ جاؤ اس سے پہلے کہ میری روح پرواز کر جائے۔ اچھا بھائی پلیز، میں تو بس، وہ علیزہ نے کہا تھا، یعنی مطلب۔ اس کی زبان لڑکھڑائی، بات بوری بھی نہ کر پایا۔ سلیمان نے اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس کیا اور رویان کے کان میں سرگوشی کی۔ آج کے بعد مجھ پر نظر رکھی تو واقعی تجھے گڈ نائٹ کہنے کی نوبت نہیں ملے گی، سیدھا تیرا گلڈ ہائی ہو جائے گا۔ سلیمان سیدھا ہوا۔ رویان نے برق رفتاری سے بھاگنا چاہا مگر سلیمان نے بھاگتے ہوئے رویان کی شرٹ پیچھے سے کھینچی اور اسے گھسیٹ کر دوبارہ بٹھا لیا۔ اب بات مکمل کرو، کیوں آئے تھے؟ کیا چاہتی ہے علیزہ؟ وہ ثنیا علیزہ کو چھیڑ دی ہے۔ سلیمان کی آنکھوں کی سرخی اور گہری ہوئی۔ ثنیا علیزہ کو؟ کیا؟ پوری بات کرو رویان۔ نہیں، میرا مطلب علیزہ ثنیا کو۔ رویان نے کان کھجائے، ٹانگ ہلائی اور ہکلانے لگا۔ نہیں مطلب دونوں ایک دوسرے کو۔ سلیمان نے بھویں چڑھائیں۔ رویان دماغ صحیح ہے نا تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بھائی ان دونوں کو کوئی لڑکا تنگ کر رہا ہے یونیورسٹی کا، آج میری ہاتھا پائی بھی ہوئی مگر وہ کوئی امیر باپ کی اولاد ہے، وہ بدلہ ضرور لے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری کہانی سنا گیا۔ سلیمان نے مٹھیاں بھینچ لیں، اس کی رگیں تن گئیں۔ کون ہے وہ لفظ چھپاتا ہوا بولا جیسے ابھی جا کے اس لڑکے کا وجود مٹا دے گا۔ بھائی نام نہیں جانتا، بس شکل یاد ہے۔ تمہاری یونیورسٹی کے ہیں؟ سلیمان نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، رویان گھبرا کر بولا۔ کسی سیاستدان کے بچے ہیں؟ سلیمان کی آواز اور بلند ہوئی۔ یہ بھی نہیں پتا بھائی۔ پسینے کی بوندیں رویان کی پیشانی پر چمکنے لگی۔ تو پھر تمہیں پتہ کیا ہے؟ سلیمان غصے سے چنگھاڑا۔ مجھے بس آپ کا پتہ ہے بھائی کہ آپ دیکھ لیں گے ان کو اور فارس کو پتہ نہ چلے۔ نور انکل ذرا پرانے زمانے کے ہیں، ثنیا کی پڑھائی کو روک دیں گے۔ سلیمان لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے کمرے میں دیکھ لوں گا، اب یہ میرا معاملہ ہے، گھر میں کسی اور سے بھی کچھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ وہ جو رویان کی بات پر ٹھیک ٹھاک پریشان ہو چکا تھا وہ حالات کا جائزہ لے رہا تھا مگر رویان کی موجودگی اسے کھٹک رہی تھی۔ اب کیا ہے؟ میں نے کہا نا کیوں کھڑے ہو، جاتے کیوں نہیں کمرے سے؟ وہ اس کی رویان کی طرف دوبارہ پلٹ کر آیا جو اب تک چیئر پر ہی بیٹھا تھا۔ جی کچھ اور بھی کہنا ہے اپنے بارے میں؟ رویان نے دنیا جہان کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائی۔ وہ کل کوئی ٹیسٹ نہیں لیجیے گا پلیز، میری تیاری نہیں ہے بھائی۔ ایک لفظ نہیں پڑھا گیا، میں پریشان تھا۔ اسے لگا سلیمان شاید اس کی بات سن کر پیٹھ تھپ تھپائے گا مگر الٹا سلیمان نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اٹھو اور رات بھر پڑھتے رہو، کل سب سے پہلا ٹیسٹ تم ہی دو گے اور اگر تم فیل ہوئے تو تمہارا حشر پوری یونیورسٹی دیکھے گی۔ سلیمان کی دی ہوئی دھمکی پر اپنا اتنا سا منہ لے کر بڑبڑاتا ہوا کمرے سے غائب ہو گیا۔ بھائی ہیں یا کسائی؟ وہ اپنا ٹاول لے کر اپنی بکس کھول کر بیٹھا تھا مگر نیند نے جلدی سے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کون سا ٹیسٹ؟ کہاں کا ٹیسٹ؟ ابھی تو اسے خواب میں پریاں نظر آ رہی تھیں۔ کلاس روم کے دروازے پر آج غیر معمولی شور تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ آج پہلا ٹیسٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔
कुछ लड़कियां किताबों में गर्क थीं, कुछ लड़के घबराहट में नोट्स दोहरा रहे थे। हर कोई जानता था कि सुलेमान शाह का टेस्ट मतलब बिजली का झटका। कल प्रिंसिपल बता चुके थे कि सुलेमान शाह अच्छे खासे सख्त मिजाज है। ओए, तुम दोनों ने पढ़ा कुछ? वो आज अलीज़ा और सनिया के पास वाली सीट पर बैठा था ताकि चीटिंग करने में आसानी रहे। वो सुबह से किताबें खोले बैठा था, जो पिछले 2 साल से उसकी साथी थी, मगर उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी तैयारी अब भी नहीं थी। अलीज़ा ने बालों में हाथ फेरते हुए बेजारी से कहा, कल वाले हादसे के बाद दिमागी कहाना का पढ़ाई में। सनिया ने भी अपना इतना सा मुँह दिखाया। मुझे लगता है मैं सब भूल गई हूँ। सनिया की आंखों में आंसू देखकर रोयान ने उसे तसल्ली दी। प्यारी लड़की, गम ना करो अब। वो लड़का तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। रोयान की बात पर वो सवालिया अंदाज में कंधे उचका गई। कैसे? सनिया के सवाल पर वो मुस्कुरा उठा। बस मैंने उनकी दुर्गति इतनी बनाई थी। अब जरा वो सामने तो आ जाए, जिंदा नहीं जाने दूंगा। और अब से तुम दोनों अकेले छुट्टी में गेट पर खड़ी भी नहीं होगी। वैन लेट होने की सूरत में तुम दोनों अंदर ही रहोगी। अलीज़ा, तुम भी समझ लो मेरी बात। वो दोनों को बहुत आहिस्ता आवाज़ में समझा रहा था। सब स्टूडेंट्स इधर से उधर बिखरे हुए थे, कोई भी नहीं पढ़ रहा था। कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल था कि नया प्रोफेसर खुद भी अनाड़ी है, बस अपने दोस्त की मदद के लिए उसके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। कुछ को पुराने वाले सर ही चाहते थे। अचानक सुलेमान शाह की आमद ने मंजर तब्दील कर दिया। क्लास में जो शोर शराबा, हंसी मजाक और बेतरतीबी चल रही थी, सब पलक झपकते ही खामोश हो गए। ये क्या तरीका है? आप लोग क्लास में हैं या किसी पार्क में? वो अपनी भारी गंभीर आवाज़ में सबको डांट रहा था। रोयान जो भी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था, घबराहट में फौरन सीधा हो गया और किताब खोल ली। कुछ लड़कियां नजरें झुकाए नोट्स पर झुक गई। 3 लड़के ऐसे सीधे हुए जैसे फौजी वर्दी में कमांडर खड़ा हो गया हो। अलीज़ा की आंखें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी और सनिया ने उसे देखकर ही अपनी तवज्जो अपने नोट्स की जानिब मबजूल कर ली। सुलेमान ने क्लास पे एक नज़र डाली। ये यूनिवर्सिटी है, खेल तमाशे की जगह नहीं। जिसे पढ़ना है वो बैठे, जिसे हंसी मजाक करना है बाहर जाकर करें। सोशियोलॉजी के नोट्स अपने डेस्क पर रखें। किसी के पास कोई बुक या कोई नोट नज़र नहीं आना चाहिए। मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ सवाल लिखूंगा, आप लोग इसका जवाब पेपर पर लिखेंगे ताकि मुझे मालूम हो सके कि आप लोगों को क्या क्या आता है। सलीमा ने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुँह किया, हाथ में मार्कर पकड़े वो दूसरा सवाल लिख रहा था कि अचानक क्लास की एक स्टूडेंट खड़ी हुई। सर प्लीज़ आज टेस्ट मत लें। सर, आलम बीमारी की वजह से बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले रह गए हैं। हम सिर्फ स्टार्ट के 3 चैप्टर्स पढ़ सके हैं, मगर वो भी अब भूल रहे हैं। सुलेमान रुक गया। मार्कर थामे वो चंद में साकित खड़ा रहा। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा सा छा गया था। सबकी नज़रें उसी लड़की पर जमी थी। ये तो गई। अलीज़ा, पक्का लिख लो, ये लड़की आज गई। रोयान अलीज़ा के बराबर वाली डेस्क पर बैठा उसके कान में भिनभिना रहा था। सुलेमान ने गर्दन मोड़कर इस लड़की को देखा, फिर बाकी क्लास की तरफ नज़र दौड़ाई। अच्छा, वो मुस्कुरा कर बोला, तो आप लोगों का मसला ये है कि याद नहीं रहा या असल में पढ़ा ही नहीं? ठीक है, आप बैठ जाएं। आज आप लोग ये पहले वाले टॉपिक दोहरा लें, इसके बाद टेस्ट दिया जाएगा। वह बहुत नरम लहजे में उस लड़की को समझा रहा था। रोयान का मुंह खुले का खुला ही रह गया। अलीज़ा, ये तो बच गई यार। वो मुसलसल उसके कान में कुछ बोल रहा था। अलीज़ा ने उसे घूर कर पीछे धकेला। दूर हटो, मुझे भी मरवाओगे, चुप रहो। वो आहिस्ता से बोला, कसम से अलीज़ा, ये लड़की क्लास की हीरोइन है आज। इसको छुट्टी में रोक लेना, ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू प्रोफेसर का भाई भी कर लेगा। वो कॉलर झाड़ कर अकड़ता हुआ बोला जब उसका नाम सुलेमान शाह ने ज़ोर से पुकारा। मिस्टर रोयान, स्टैंड अप। लम्हा भर को रोयान को समझ नहीं आया कि उसका नाम पुकारा जा रहा है। रोयान, खड़े हो जाओ, तुम्हें बोला है सर ने। अलीज़ा ने दाम पीसते हुए उसे होश दिलाया। फिर वो हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। जी सर। आवाज़ में मासूमियत शामिल थी। सुलेमान शाह ने चश्मा ज़रा सा नीचे किया और तीखे निगाहों से उसे देखा। अभी आप अलीज़ा के कान में कौन से फ़लसफ़े की बात फरमा रहे थे? क्लास का डिसिप्लिन बर्बाद करने का शौक है या वाकई प्रोफेसर बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो? क्योंकि 2 साल से आप इसी क्लास में हैं। बुक्स तो हिफ्स हो जानी चाहिए आपको, तो फिर शुरुआत भी आपसे करते हैं। रयान थूक निकलता हुआ सीधा हुआ मुस्कुराकर सलमान की तरफ देखा, फिर जाते जाते अलीज़ा को आयतुल कुर्सी पढ़ने को कहा। अलीज़ा, कुछ फूंक दो मुझ पर। सनिया की बेख्तियार हंसी छूटी थी और सलमान की तेज़ नज़र उस पर भी पड़ चुकी थी। मिस सनिया, आप भी तशरीफ़ ले आएँ ताकि पूरी क्लास को मौका मिले, हाँ, आपको सुनने का। सनिया भी मुँह बसोरती खड़ी हो गई। शाहजहां नादिर वो अपनी जगह से उठे और सलमान के पास जाकर खड़े हुए। सलमान ने बोर्ड मारकर रोयान की तरफ बढ़ाया। बोर्ड पर जो सवाल है उसे हल करो। रोयान के हाथ से पसीना बहने लगा। उसने मारकर ऐसे पकड़ा जैसे ये कोई बम हो जिसका पिन निकाला जा चुका है। भाई, मेरा मतलब है सर, ये तो बड़ा लंबा सवाल है, थोड़ा आसान दे देते ना। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। क्लास के सब लड़के लड़कियां दबे दबे कह के लगा रहे थे, मिस्टर रोयान, आपको तो पूरे नोट जुबानी आने चाहिए। आइए देखते हैं आपकी मेहनत कितनी है, सुलेमान ने सर्द लहजे में कहा। क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। सुलेमान शाह ने मार्कर उठाया और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो बर्क रफ्तारी से 3 सवालों को टिक कर गया।
सुलेमान शाह ने बोर्ड पर ये 3 सवाल लिखे और फिर मुड़कर क्लास की तरफ देखा। ये कोई आम सवाल नहीं है, उनके जवाब के लिए किताबों के साथ साथ सोचने की भी ज़रूरत है। आप लोगों को सिर्फ याद करने वाले स्टूडेंट नहीं बनना, समझने वाला इंसान बनना है। तो मिस्टर रोयान जवाब दें। व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस? अदल क्या है? सर, अदल का मतलब है सबको बराबर का हिस्सा मिलना। जैसे घर में मुर्गी के सिर्फ 2 टांग होते हैं और घर वाले 6, तो अदल ये है कि दोनों टांग मेरे हिस्से में आ जाएं, ताकि बाकी सबको बराबर बराबर का सालन मिल सके। क्लास में तो जैसे कह के ही फूट गए। सुलेमान शाह की आंखों की सुर्खी और गहरी हो गई, मगर सुलेमान ने उसे अब की बार कुछ नहीं कहा। मिस सनिया, आपका अदल भी कुछ इसी तरह का है? उसने सनिया को मुखातब किया जो रोयान की बातों पर हंस रही थी। अदल का मतलब सिर्फ सबको बराबर चीज़ बांट देना नहीं है सर। अदल ये है कि जिसका जो हक है वो उसे दिया जाए। अगर किसी बच्चे को दूध की ज़रूरत है तो उसे पूरा दूध मिले और ताकतवर को उस पर ज़बरदस्ती ना करने दी जाए। इस्लाम में अदल का मतलब है कि अपने नफ्स के खिलाफ जाकर भी सच को कायम रखना, क्योंकि अदल ज़मीन पर अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त का अक्स है। क्लास साकत हो गई। सलमान शाह के हाथ में पकड़ा मारकर रुक गया। चंद लम्हों के लिए उसके चेहरे पर हैरत और फिर दबे दबे फ़ख्र का तासुर उभरा। इम्प्रेसिव मिस सनिया, आप अपनी सीट पर जाएं। सनिया फ़ख्र से अपनी सीट पर बैठ गई थी। आप भी अपनी सीट पर तशरीफ़ ले जाएं, वो रोयान को बोला। टेबल से डस्टर उठाता सारा ब्लैक बोर्ड साफ़ कर गया। फिर मुड़ता हुआ पूरी क्लास से मुखातिब हुआ। सिर्फ रट्टे नहीं लगाने, अपनी ज़ात को भी आईने में देखना होगा। कल आप इसी मौजू पर रिसर्च नोट बनाकर लाएंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? इल्म और हिकमत में क्या फ़र्क है? सलेमान ने सबसे पीछे बैठे हुए लड़के से पूछा। आप लास्ट रो में स्टैंड अप। उसने नज़र घुमाकर सबसे पीछे बैठे एक लड़के पर नज़र डाली। वह लड़का सहम कर खड़ा हो गया। सर, इल्म किताबों में लिखा होता है और हिकमत मेरा ख्याल है नसीहत में है। ठीक है, नेक्स्ट आप बताएं। उसने बराबर बैठे लड़के को चुना। सर, इल्म यह है कि आपको पता हो कि टमाटर एक फ्रूट है और हिकमत यह है कि आप उसे फ्रूट सलाद में ना डालें। क्लास एक ज़ोरदार कहके से गूंज उठी। माशाल्लाह, आप बैठ ही जाएं मेहरबानी करके। सलेमान ने उसे इशारे से वापस बिठा दिया। सर, इल्म और हिकमत में इतना ही फ़र्क है जितना रोशनी और बसीरत में। उसी लम्हे सनिया खड़ी हुई। सर, इल्म तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन हिकमत तब मिलती है जब इंसान इल्म को ज़िंदगी के तजुर्बात और अखलाकियात के साथ मिला दे। कुरान में भी फरमाया गया है कि जिसे हिकमत दी गई है उसे खैर कसीरत दिया गया। यानी इल्म रास्ता दिखाता है और हिकमत बताती है कि उस रास्ते पर कैसे चलना है। सुलेमान ने चंद लम्हे साकत होकर उसे देखा। वेरी वेल सेड मिस सनिया, आपको देखकर लगता नहीं कि आपके पास इतना ज़हीन दिमाग भी है। सनिया ने लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर एतमाद से सीधी खड़ी हो गई। सर, हर दिमाग बज़ाहिर आम लगता है, मगर असल कमाल यह है कि कौन सा उस्ताद उसे पहचान कर जगा सके। क्लास ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सुलेमान के चेहरे पर लम्हा भर को खामोशी छा गई, जैसे वह इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। इम्प्रेसिव, सुलेमान उसकी तारीफ किए बगैर न रह सका। ये तो बराह रास्त प्रोफेसर के सीने पर छक्का मार गई है। हाँ, और प्रोफेसर साहब की मुस्कुराहट बता रही है कि शॉट सीधी लगी है। पीछे बैठी हुई 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं, जो अलीज़ा के कानों में भी पड़ी। अलीज़ा ने आंखें मींची थीं। अलीज़ा ने सुलेमान के चेहरे की तरफ देखा, वहाँ मुस्कुराहट थी, और वह मुस्कुराहट अलीज़ा को अब जहर लग रही थी। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में हलचल मची हुई थी। एक लड़का जिसके कपड़े फटे हुए थे, उसका हाल बुरा था। यूँ लगता था जैसे उसने किसी से बहुत ज़्यादा मार खाई थी। वो हाथ में माइक पकड़े कोई अनाउंसमेंट करना चाहता था। ब्रेक के बाद अपनी अपनी क्लास में जाते हुए तमाम स्टूडेंट्स रुककर उस लड़की की तरफ देख रहे थे, मगर हालत ऐसी थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए।